Hello students, in the last video we have discussed the four parts of speech, that is noun, pronoun, adjective and verb. And today we are going to study the next four parts of speech, that is adverb, preposition, conjunction and interjection. So let's begin with the adverb. First of all, we are going to study the definition. The adverbs are the words that describe, qualify, modify a verb, an adjective or another adverb. और इसकी दूसरी definition भी है, an adverb is a word that provides some additional information about a verb, an adjective or another adverb. तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया को, किसी विशेषण को या दूसरे क्रिया विशेषण, इट मीन्स एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं या उनके बारे में बताते हैं. एंड इन द अनदर डेफिनेशन, द डेफिनेशन मीन्स एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फास्ट, स्लोली, केयरफुली, वेरी एंड साउंडली. These all are the adverbs, and how we are going to use all these adverbs in different forms, and that we are going to discuss now. First, verbs. It means कुछ verbs ऐसे होते हैं जिसमें adverbs हमें additional information देते हैं. इसको हम example से समझते हैं. She walked carefully. She walked. It is a complete sentence, but carefully means this word giving the extra information about this verb. So this is the adverb. In the second example, they played here. They played. उन्होंने खेला. It is also giving a complete meaning, but here जो word है वो additional information दे रहा है about the verb play. So here is a adverb here. My son came yesterday. My son came yesterday. यहाँ पर my son came, मेरा बेटा आया, लेकिन yesterday it is giving extra information about this sentence. So yesterday is a adverb. In second, adjective. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो adjective के बारे में extra information देते हैं, उन्हें हम समझते हैं कुछ sentence के ज़रिए. First, my friend is very intelligent. अब यहाँ पर मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है. यहाँ पर इंटेलिजेंट जो हमारा एडजेक्टिव है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड वेरी. सो दिस वर्ड इज़ अ एडवर्ब. इन सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम मच बेटर. आई एम गुड, आई एम बेटर. इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सो दिस वर्ड गिविंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वर्ड. सो इट इज़ अ एडवर्ब हियर. Other adverbs. He can work very efficiently. Now, as we have learnt, efficiently is also adverb, but this very is giving the extra meaning to this adverb. So, very is also a adverb here. Don't go too slowly. Slowly is also an adverb, but too, it is giving extra information about this word slowly. So, this too is also a adverb. Now, we are going to understand the next topic, that is preposition. First of all, we are going to understand it with the help of definition. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or a pronoun with another word in a sentence. Preposition ऐसे शब्द होते हैं जो relationship दिखाते हैं किसी noun या pronoun की दूसरे शब्दों या दूसरे words की किसी भी वाक्य में. इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ प्रीपोजिशन इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा प्लेस किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो सम प्रीपोजिशंस आर इन, एट, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, एक्सेट्रा. दे ऑल लुक्ड एट हिम. अब यहाँ पर ये जो वर्ड है एट, इट इज़ शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ नाउन विद अनदर वर्ड, दैट इज हिम. सो एट इज़ अ प्रीपोजिशन हियर. अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. This preposition is
added or placed before a noun. So this word is a preposition. He lives in Delhi. Now New Delhi is also a noun. So this word is used before a noun. So this word is a preposition. The fan is over them all. Them. It means it is a pronoun. So this word is used here is preposition. Now let's come to the another topic of parts of speech, that is conjunction. First of all, we are going to understand the definition. A conjunction is a word that is used to join words, phrases, clause और sentences. कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्दों को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है. सम एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शंस आर एंड, सो, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा. How we have to use all these conjunction in a sentence, that is we are going to learn in the next sentences. The first sentences is my friend was tired so he slept. अब यहाँ पर हमारे पास 2 sentences हैं. My friend was tired, मेरा जो दोस्त था वो बहुत थका हुआ था. He slept, वो सो गया. अब यहाँ पर इन 2 sentences को जोड़ने के लिए हमने एक word यूज़ किया है so. इट इज़ गिविंग द मीनिंग, इसलिए मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए वो सो गया. सो कंजंक्शन, द वर्ड सो इज़ यूज्ड टू जॉइन दीज 2 sentences. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देव एन्जॉयज रीडिंग एंड डांसिंग. देव एन्जॉय क्या 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 करता है? रीडिंग एंड डांसिंग. तो यहाँ पर 2 words हैं, रीडिंग एंड डांसिंग, एंड वी हैव यूज द वर्ड, the conjunction word, that is and. Dev enjoys reading and dancing. In the third example, I left early but I missed the train. मैं घर से या मैं जल्दी निकल गई, I missed the train, और मैंने ट्रेन मिस कर दी. अब यहाँ पे 2 sentences हैं, तो इन दोनों sentences को join करने के लिए हमने एक word यूज़ किया यहाँ पे but. It means it is giving the opposite meaning. मैं जल्दी निकल गई थी पर मैंने ट्रेन मिस कर दी. तो यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन वर्ड है दैट इज़ बट वी हैव यूज्ड हियर. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हेमंत डिडंट लाइक द बुक. हेमंत को बुक पसंद नहीं आई. इट डिडंट हैव एनी पिक्चर्स. अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इट, ये बुक के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है. सो इट डिडंट हैव एनी पिक्चर, उसमें कोई भी पिक्चर नहीं थी. अब यहाँ पर हमारे पास 2 sentences हैं, एंड टू जॉइन दीज 2 sentences विद द वर्ड विद द बिकॉज, और यहाँ पर हमने बिकॉज वर्ड यूज़ किया है इन दोनों sentences को जॉइन करने के लिए. हेमंत डिडंट लाइक द बुक बिकॉज इट्स डिडंट हैव एनी पिक्चर. हेमंत को बुक पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें कोई भी पिक्चर नहीं थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजंक्शंस एंड हाउ वी हैव यूज द डिफरेंट कंजंक्शन वर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ sentences. Let's come to the last part of speech, that is interjection. First, we will understand the definition. Interjection are the words used to express certain feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief or surprises, etc. Interjection ऐसे शब्द होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अचानक होने वाली फीलिंग या इमोशंस को, जो पैदा होते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुशी, अचानक खुशी की वजह से, दुख की वजह से, या फिर आश्चर्य की वजह से. और वी आर हैविंग द वन मोर डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन इज, इट इज़ सिंपल अ स्टेटमेंट, दैट इज़ इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस. इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक होने वाली फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताते हैं. द स्टार पॉइंट ऑफ दिस इंटरजेक्शन इज, interjection words or phrases are always followed by exclamation mark. जहाँ पर भी ये साइन होता है, it resembles about the existence of interjection words. The examples of these interjection words are alas. Alas word is used for grief. दुख के लिए हम alas word का यूज़ करते हैं. Hooray, खुशी के लिए हम hooray word का यूज़
करते हैं। ओह कहाँ, जहाँ पर सरप्राइज होता है वहाँ पर हम ओह वर्ड का यूज़ करते हैं इन द इंटरजेक्शन। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? दैट वी हैव वन द मैच, हमने जो मैच है वो जीत लिया। और हुर्रे इज़ अ रिजेम्बलेंस ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के लिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है हुर्रे विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अलास आई हैव मिस्ड द ट्रेन। ये यहाँ पर जो अलास वर्ड है वो दुख, खेद वर्ड्स के लिए एक्सप्रेस हुआ है। आई हैव मिस द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, तो यहाँ पे अलास वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ग्रीफ। ओह यू हैव कम सो अर्ली। अब यहाँ पर ये जो ओह वर्ड है, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है सरप्राइज के लिए। यू हैव कम सो अर्ली, तुम बहुत जल्दी आ गए, तो यहाँ पर ओ वर्ड हमने यूज़ किया है टू शो द सरप्राइज। So this is all about the parts of speech, and I have explained all the 8 parts of speech with examples. Hope you have easily understand all these topics. So in the next video I'm going to give you the assignment, and you have to solve that assignment on your own, and that is for your practice, that how much you have understood about the parts of speech. Till then, have a good day and take care of yourself.